Hello kids, welcome back to your computer class. So kids, today's class we are going to start from changing font of the text. So we are going to start this class with changing font of the text. Mane how we can change the font of our text, okay? This is the topic that we are going to cover today. Changing font of the text. How you going to change the font of the text? You can change the font of the text to enhance the appearance of the document. ठीक है? Why we change text? We change text to enhance the appearance of the document. हमारा document कैसा दिखेगा इस चीज को enhance करने के लिए what we do? What we do? Okay. So we can change the font for this. Now what are the steps to change font? What are the steps by which we can change the font? First is what? Select the text you want to change to a different font. Select the text you want to change to a different font. Next, click on Home tab. Next is what? Click on Home tab. Then click on the down arrow font. What you have to do? Then you have to click on the down arrow font, this option. तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा सा ऐसा ड्रॉप डाउन एरो will appear in front of you. Okay. Now click on the font you want to use. ठीक है? And from here what you will do? Whatever the font you want to use, just click on that. जो भी font आप use करना चाहते हो. Click on that. Okay. The text you selected changes to the new font. So what will happen? So what will happen? The text you selected changed to a new font. To deselect text, click on outside the selected area. Okay. To deselect text, click on outside the selected area. Fine. Next, what you have to do? Next, what you have to do? Using the mini toolbar. But before moving toward the using the mini toolbar, let us practice this. तो मैंने यहाँ पे open किया. Okay, and yes, I have to refresh this. चलो. Fine. Now let us copy something. चलो कुछ copy कर लेते हैं. नेट से हम क्या कर लेते हैं? कुछ copy कर लेते हैं. For example, if I want to read something about okay, Angkor Wat. Angkor Wat, Cambodia. If I want to read something about it, ठीक है, तो मैंने क्या किया? अंगकोर वट के बारे में मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, समथिंग मैं म्यूजियम तक मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया. मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे गई, यहाँ से इस टेबल को डिलीट किया. हाउ वी विल डिलीट? टेबल लेआउट, देन डिलीट द सेलेक्ट द टेबल एंड देन डिलीट टेबल. ठीक है, टेबल डिलीट हो गया. Ctrl+V. अब क्या करना है? अब इसकी साइज हमें इंक्रीज कर लेनी है सो दैट ये बच्चों को भी विजिबल हो. तो मैंने इसकी साइज क्या कर ली? इंक्रीज कर ली. ठीक है, अब देखो व्हाट वी हैव टू डू. मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल क्या करना है? चेंज करना है. मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल क्या करना है? चेंज करना है. तो इफ आई वांट टू
Okay. So if I want to change the font style, first of all I have to select. तो मैंने क्या किया? So I'm going to delete some of the things because I'm not liking it. तो मैं कुछ चीज़ें इरेज कर रही हूँ स्क्रीन से so that ये थोड़ा presentable लगे. Okay, fine. So I have deleted some of the things. This also. Now अब मैंने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद देखो मैं यहाँ पे गई फॉन्ट ऑप्शन में, फॉन्ट नेम ऑप्शन में. यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन पे प्रेस किया. अब देखो क्या हुआ, मेरे सामने फॉन्ट स्टाइल्स क्या हो गई, मेरे सामने फॉन्ट स्टाइल ओपन हो गई. तो इनमें से मैंने कौन सी फॉन्ट स्टाइल चूज की, मुझे ये वाली फॉन्ट स्टाइल पसंद आई तो मैंने ये चूज कर ली. सी व्हाट हैपन. सो यू कैन सी ना यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं. आप देख पा रहे हो ना कि ये क्या हो गया, फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई, चेंज हो गई. नाउ इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस फॉन्ट स्टाइल देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज इट एज वेल. तो आपने क्या किया, फिर से मैंने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट किया. जैसे ही मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया आई विल गो ऑन फॉन्ट स्टाइल. अब यहाँ पे क्लिक किया, चलो ड्रॉप डाउन कुछ तो मिलेगा, कोई अच्छी फॉन्ट स्टाइल. चलो मुझे ये वाली बहुत पसंद है तो आई हैव टू क्लिक दिस वन. अच्छा देखो ये वाली वाकई अच्छी है ना. सो यू कैन सी व्हाट हैपन हियर. आप देख पा रहे हो कि व्हाट हैपन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई. फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई बेटे, चेंज हो गई. ओके नाउ गॉट इट. इतनी चीजें हमने कर ली. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. तो देखो इस तरह से व्हाट वी डू, दिस इज द वे हाउ वी चेंज द फॉन्ट स्टाइल. दिस इज द हाउ वी ओके. यूजिंग मिनी टूल बार. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, यूजिंग मिनी टूल बार. सो यूजिंग मिनी टूल बार यू कैन गेट क्विक एक्सेस टू कॉमन फॉर्मेटिंग कमांड. देखो क्या होता है, जैसे ही आपने किसी वर्ड को सेलेक्ट किया तो ऊपर क्या होता है ना, ऐसे एक कॉमन टूल बार सा, मिनी टूल बार सा आता है. तो वहां पे क्या होती है, बहुत ही कॉमन फॉर्मेटिंग कमांड्स वहां पे आपको मिल जाते हैं. ओके चलो फिर देखते हैं. So you can get quick access to common formatting command by using the mini command toolbar. When you select the text in a document, the mini toolbar appears the faintly. Okay. If you want to use the toolbar, you can activate its tool. If you prefer not, you can continue working and the toolbar disappear. See, select the text. First of all, what you have to do? सबसे पहले आपने क्या करना है? You have to select the text. सबसे पहले you have to select the text. Then after selecting the text, next you can also right click over the selected text to display the toolbar. Okay, move the mouse pointer over the toolbar. Click on the tool. So
Word immediately applies the formatting. Okay, now let us try this on the word. तो देखो word में suppose I have searched for the first word that is अंगकोर word. मैंने इसको जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही इसे सेलेक्ट किया, सी व्हाट हैपेंड, मेरे सामने क्या हुआ, फिर से देखो, जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बन के आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आर, यहाँ पे सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे वो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सारे वही ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं. This is what? This is mini toolbar. Now suppose if I want to increase the size of Angkor word, then what I have to do? Select किया, mini toolbar आया, और यहाँ पे drop down पे press करके I can increase the font size. देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, font size क्या कर लिया, increase कर लिया. Now if I want to change the text color, then also I can do it. Select किया, मिनी टूल बार आया, टेक्स्ट कलर पे गई, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, टेक्स्ट कलर क्या हो गया, चेंज हो गया. टेक्स्ट कलर क्या हो गया, क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जिन हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस कलर यहाँ पे इसका क्या हो गया, चेंज हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू. अब अगली चीज हमें क्या करनी है, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, हाईलाइट करना था तो मानो हमने रेड से इसको हाईलाइट भी कर दिया. तो ऑल दिस थिंग्स वी आर एबल टू डू, ये सारी चीजें हम कर पाए जस्ट बिकॉज हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था. इस वजह से हम क्या कर पाए, सारी चीजें हम कर पाए, है ना. हमने सेलेक्ट किया था, हमारे पास जो भी चीजें सामने हमारे पास आई, जो भी चीजें हमारे सामने आई वो मिनी टूल बार में हम उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की एडिटिंग हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, changing the size of the text. Next is changing the size of the text. Now next thing is how we can change the size of the text. अभी वैसे तो मिनी टूल बार पे मैंने आपको करके दिखाया that how we can change the size of the text. Next, font size controls the height of the font generally measured in points. ठीक है, font size control the height of the font generally measured in point. You can increase or decrease the size of the text in your document. What you can do, you can increase or decrease the height, size of the font, size of the text in your document. First is select the text you want to change to a different font. Click on home tab. Next what you have to do, you have to click on the home tab. Click on the down arrow of the font size. Click on the size you want to use. Next what you have to use, जो भी साइज आपको यूज करनी है आपने क्या करना है, उस पे आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द साइज यू वांट टू यूज. द टेक्स्ट यू सेलेक्टेड चेंजेस इन द न्यू साइज. टू डीसेलेक्ट टेक्स्ट क्लिक ऑन आउटसाइड द सेलेक्टेड एरिया. टू डीसेलेक्ट टेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक आउटसाइड द सेलेक्टेड एरिया. टेक्स्ट के आउटसाइड आपको सेलेक्टेड एरिया में क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेंज द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. चेंजिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. तो चलो पहले फॉन्ट साइज चेंज करके देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चीज कर लेते हैं, ठीक है. ओके ओके, चलो पहले ये काम करके देख लेते हैं. लेट अस सी.
सपोज अगर मुझे यहाँ पे एक हेडिंग देनी है अंगकोर वट के नाम की, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे हेडिंग देनी है अंगकोर वट के नाम की, मुझे क्या करनी है, हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडिंग दिया अंगकोर वट। व्हाट नेक्स्ट, ओह नो 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 नो, ये तो नहीं होना चाहिए था, अंगकोर वट। ओके नेक्स्ट इज व्हाट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैं इसकी एडिटिंग हटा दूं आई गेस, ठीक है, पहले मैंने इसकी, चलो इसकी एडिटिंग हटा देते हैं, नहीं एडिटिंग तो अच्छी लग रही है, तो कलर कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया, सेलेक्ट किया पे गए, नो कलर कर दिया, ठीक है। नाउ आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, अब मुझे चाहिए कि मैं इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू सेलेक्ट, आपने सेलेक्ट करना है, तो क्या किया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद देखो फॉन्ट साइज जो कि ऑलरेडी 28 पे है, चलो मैं इसको 48 कर दूं। सी व्हाट हैपन, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई, क्या हुआ, फॉन्ट साइज क्या हो गई, स्क्रीन पे इंक्रीज हो गई, है ना, फॉन्ट साइज आपके स्क्रीन पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब फॉन्ट साइज आपके स्क्रीन पे इंक्रीज हो गई, तो दिस इज द वे यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट, रिमेनिंग टेक्स्ट। चलो बाकी टेक्स्ट का भी करके देखें, हाउ वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, चलो क्लिक कर लिया भाई, चलो ठीक है बढ़िया, क्लिक किया, इस पे गए, रेड कर दिया, मतलब ये तो हम अभी कलर चेंज कर रहे हैं। अब मुझे इसको छोटा करना है, 48 से मुझे 12 करना है। तो अब देखो अंगकोर वर्ड कैसा हो गया, एकदम छोटा सा हो गया, है ना। अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, 24 कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दिस इज हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कैन मेक अवर टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। Next is what, how you can make your text appear bold, italic and underline. Bold, italic and underline कैसे कर सकते हैं, changing the text bold, italic or underline. What you have to do, you have to change the text to bold, italic or underline. So what are the steps for that? You can make your text bold or italicize or underline to emphasize information in your document, ठीक है। देखो बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज रिमेन द सेम, दैट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट है उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। Okay, then click on the home tab. Next what you have to do, you have to click on the home tab. After select the text you want to italicize, after italicizing the text you have to click on the home tab. Now once you will click on the home tab, click on one of the following button, या तो bold पे click करो, या तो italic पे, और या तो underline पे click करो। या तो आप किस पे click करो, underline पे click करो, ठीक है। Next, what you have to do, after clicking bold, italic, underline, your text will appear bolder and it will become italicized and underline भी वहाँ पे हो जाएगा। Okay. Let us try this. चलो इसको ट्राई करें अपने डॉक्यूमेंट पे। तो भाई मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट अपना ओपन किया, ओके तो मैंने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट अपना फिर से ओपन किया, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। तो मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट किया। जब मैंने सेलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, तो फिर हमें क्या करना है, बोल्ड। तो देखो यहाँ पे इन फॉन्ट टैब यू कैन सी बोल्ड ऑप्शन। आई हैव क्लिक्ड ऑन बोल्ड। देखो ये टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ऑल्दो देखो ये फॉन्ट स्टाइल ऐसी है कि ऑलरेडी बोल्ड है। देन आई हैव क्लिक्ड ऑन इटैलिक, तो अब देखो ये इटैलिसाइज होगा। एंड व्हेन आई हैव क्लिक्ड ऑन अंडरलाइन, तो अब देखो क्या हो गया, ये टेक्स्ट कैसा हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट तीनों हो गया, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया एंड देन अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ये तीनों हो गया। ओके, तो देखो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। नाउ लेट अस मूव बैक टू द पीडीएफ एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। Changing the text, changing the color of the text. Color of the text can be changed to draw attention toward the heading or important information in your document. The color of the text can be changed to draw attention toward the heading or important information in your document. Okay. So select the text you want to change. Changing the, अब हम क्या करने जा रहे हैं, font color change करने जा रहे हैं. Now we are going to change the font color. Let's do it. So what you have to do, select the text you want to format, click on the home tab, click on the down arrow of the font color, click on any color, then click on the any color. Okay, let us do. अब देखो भाई हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी कलरफुल है, तो हम रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट को, चलो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे वही किया, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। वंस सेलेक्टेड, नेक्स्ट इज देखो दिस इज फॉन्ट कलर ऑप्शन, तो आई विल क्लिक ऑन दैट। फॉन्ट कलर ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी क्या किया, देखो फॉन्ट कलर क्या हो गया, चेंज कर दिया है ना। फॉन्ट कलर क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। अर्लियर इट वाज ब्लैक बट राइट नाउ ये किस कलर का है बेटा, अभी ये किस कलर का हो गया, यू कैन सी राइट नाउ इट इज येलो इन कलर। फिर से सेलेक्ट किया, दिस टाइम ऑल्सो आई वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट कलर। I have clicked on the drop down arrow and this time I have clicked on green. अब देखो ये किस कलर का हो गया, अब इस बार ये किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। ये हमारे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर। अच्छा, नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग द कलर। नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ वी कैन हाईलाइट द कलर, ठीक है। कैसे हम अपने कलर को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जब हम कभी कभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्कर की हेल्प से ऐसे हम हाईलाइट करते हैं ना, ऐसे करके, या कभी कभी हम टू लाइंस को भी हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम हाईलाइट करते हैं। तो जब हम इस तरह से हाईलाइट करते हैं, तो सिमिलरली सेम थिंग यू कैन डू हियर इन MS Word also. In MS Word also you can do the highlighting.
let us do. So you can use color to create highlights in a document to draw attention to the text. Highlighting text is useful for making, okay, highlighting text is useful for marking information that you may want to review or verify later, that you may want to review or verify later. Next, click on the home tab. First of all is what you have to click on the home tab. सबसे पहले आपने क्या करना है, home tab पे क्लिक करना है. So once you will click on the home tab, now under home tab you have to click on the text highlight color, this option. जब आप ऐसे इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. आपके पास आपकी स्क्रीन पे क्या होगा, ऐसे कई सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. ठीक है, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने डिजायर्ड कलर को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो. आप यहाँ से अपने डिजायर्ड कलर को चूज कर सकते हो. नेक्स्ट, select each area of the text you want to highlight. The text you select appear highlighted. When you finish highlighting the text, press the escape key from the keyboard. What you have to do, you have to press the escape key. चलो करके देखें, हाईलाइटिंग करके देखें. ओपन किया, क्या करना है भाई, हाईलाइट करना है हमें. ठीक है, सपोज मुझे ये जो मैंने हेडिंग दी है अंगकोरवट, सपोज मुझे इसी को हाईलाइट करना है. तो देखो यहाँ पे आई एम गेटिंग हाईलाइट ऑप्शन. अब जब मैं हाईलाइट ऑप्शन पे जा रही हूँ तो देखो मेरे पास कितने सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, है ना. देखो मेरे पास क्या हो रहे हैं, कितने सारे हाईलाइट कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. येलो, ग्रीन, मैजेंटा, ब्लू, रेड. ओके, सो अब देखो हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया. चलो फिर से हाईलाइट करें किसी नोन कलर से. तो मैंने इस बार ये कलर यूज किया. आप देख पा रहे हो ये टेक्स्ट क्या हो जा रहा है, हमारा टेक्स्ट क्या होता जा रहा है, हाईलाइट होता जा रहा है. तो जैसे हमने टेक्स्ट को हाईलाइट किया, मतलब जैसे हमने हेडिंग को हाईलाइट किया है, सिमिलरली वी कैन हाईलाइट द होल डॉक्यूमेंट. हम क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं. How we will highlight the whole document? Now see, to highlight the whole document, what you have to do, first of all, you have to press Ctrl plus A. आपने क्या करना है, Ctrl plus A आपको प्रेस करना है. And once you will press Ctrl plus A, what will happen? So once you will press Ctrl plus A, पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, देन आपने कहाँ जाना है, होम टैब पे. होम टैब पे कहाँ जाना है, टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक किया, अपना डिजायर्ड कलर क्लिक किया. और जब आपने अपना डिजायर्ड कलर क्लिक किया, so what will happen when you will click on the desired color option, आपका पूरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, that will appear highlighted. तो चलो करके देखें. what happened, see, पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया, है ना. देखो पूरा टेक्स्ट हाईलाइटेड हो गया, करेक्ट. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन हाईलाइट अ गिवन टेक्स्ट. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हाउ वी कैन हाईलाइट, हाउ वी कैन मेक अवर टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल. तो एक फॉन्ट को चेंज करने के जितने जितने तरीके थे, आज हमने वो सारे देखे. तो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग एट योर होम and we will meet in our next class.